So good morning, all the participants for tomorrow examination. And I'm here to showcase you the demonstration for the examination which we are conducting tomorrow. Okay, let me share my screen. All the student has to go through a mock link which the management will share with you. Okay, this mock link and the examination link will only work in the Android mobile phones and Windows desktop or laptop. Okay, so you have to make sure that you are using the examination link on Android mobile only or on the Windows laptop or desktop with the webcam and microphone. This is the basic requirement for our examination system. Second, this mock link is used to test your system compatibility. You all have to go through this mock link and have to check whether your system is compatible or not. Once you click on this link, I mean, when you hit this mock link, you'll go through this web page where the browser will ask you several permissions. Like you have to allow the camera access, you have to allow your microphone, you have to allow your location access. So all the pop-up notifications which will appear on the link, you have to allow the browser to access those permissions, right? So you can see here that I have allowed my browser, like I have given all the permissions to my browser. First, that the browser is compatible for the exam, the browser version is compatible. So browser version means the updated Chrome version. If you are giving an examination on Android mobile phone, you have to check on the Play Store that whether your Google Chrome is updated or not. Okay. So if it is not updated, you have to go through the Play Store, have to update the Google Chrome, and then re-hit the examination URL. Okay. Then there is a computer has a microphone. It is yes. Computer has a webcam. Yes. Exam site has webcam permission. Yes. Exam site has microphone permissions. Yes. Exam site has location permissions. Yes. Browser support proctoring video audio communication. Yes. So your overall status is okay. It means that your system is compatible with the examination system. Once it is done, you have to click on the continue button. Okay, these are some instructions for the examination. You have to go through all these instructions. And when you go through a mock link, predefined user ID and login password is already mentioned here. You just have to click on the login button. Okay, so once you log in into the examination system, you have to authorize yourself. I mean, you have to click your photograph and you have to click your identification card for your verification. So for that process, you have to do click on that continue to step one button. Okay. So you have to click on this continue to step one button. You can see a microphone or camera has been activated and you have to click a photograph of yourself. Your photograph is captured. You have to click on the upload button. The system says photo uploaded. You have to click on the OK button. Now, once your photograph has been uploaded, you have to continue to step two. In step two, you have to upload your ID card, whether it can be your school ID card, it can be any government ID card, it can be any identification card. You have to click a snapshot like this. You have to click on the upload button. The system says ID card uploaded. You can click on OK and then start verification. In case your picture is not cleared, you can re-click the photograph like this and again upload, click on the upload button. System says ID card uploaded. You have to click on OK. Then you have to click on start verification. So once you click on the start verification, you will jump to this instructions page, your examination instruction pages. These instructions are for the mock link only. The actual instructions will be different from this. Okay. So you have to read all the instructions. You have to go through the instructions, and to start the exam, you have to check this checkbox, a disclaimer, and you have to then click to the I am ready to begin button. So this is the examination view from the candidate point of view, where you can see there is question number 1 out of 20. It's a question mentioned here and the options are mentioned below. You have to pick the correct option, okay, and have to click on the next button.
once you click the, once you submit any answer to the question, you can see the color palette has been changed from yellow to green. It means you have answered the question number 1. Suppose you are not getting this question and you have to skip this question, you simply have to click on the next button. You can see you have not answered the question number 2, so its color is still yellow. Okay. Now again in question number 3, I have opted for option A and clicked on next. So your answer is successfully saved and the color has been changed to green. On any time you can jump to any number of question, like you have to jump to the question number 1 again, you can click on the question number 1. If you have to jump to the question number 10, you can click on question number 10. You can jump to any question at any particular time. Okay, your every click is saving, your every click is recorded, so you don't have to worry that whether your answer is not saved or like anything else. Okay, then there is another option which is called mark for review. Suppose in question number 2 you have opt for option number A, which is 20, and you are doubtful that whether this answer is correct or not, like you have to change this answer after 10 minutes or after 15 minutes, you can click on the mark for review option. So when you click on the mark for review option, the color palette has been changed to blue. Okay, what does this means? It means that you have already answered the question number 2 and you have opt for mark for review. It doesn't mean that your answer is not saved. Your answer is saved when you have clicked on the option A, but you have opt for mark for review just for your case, like if you have to recheck your answer. Okay, so like I have chosen for mark for review, and in the end of examination, suppose I have to change my answer, I can change the answer from here. Okay. So this is the examination panel from the candidate's point of view. Okay, at any time you can see the summary here, that how many questions are there, how many questions are unanswered, how many questions are answered, how many questions are marked for review. Okay, once you are done with all these questions, you have to click on the end exam button, which is mentioned here. End exam button will be activated only after a limited time. Like if the management has allowed you to end the examination after 30 minutes or after 40 minutes, you have to wait for all that time. Like if the management has decided that you have to wait for 40 minutes, you have to wait for the examination for 40 minutes, then only after the end exam button will work. So once you have completed your examination, you have to click on the end exam button. You can see a pop-up is there. Are you sure you want to end the exam? Again, please reconfirm to end the exam. So if by mistaken you have clicked on the end exam button, we have created 2 notifications for your confirmation. तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ अगेन सर. ओके विदित सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स पे, हाँ रिलेटेड टू द यूज ऑफ पीसी, लैपटॉप, फोन, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ जैसे इशू कंसर्न्स अगर रेज होते हैं तो वो भी आप थोड़ा सा एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज. हाँ मैम, आप मुझे क्वेश्चंस बताइएगा, मैं आंसर करता जाऊंगा. द थिंग इज कि हम पीसी या लैपटॉप से करें, ये मैंडेट है क्या? फोन से भी कर सकते हैं क्या? और इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया तो क्या पूरा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा एंड वापस लॉग इन हो जाएगा, स्टफ्स लाइक दैट, सबमिट हो जाएगा या क्या होगा वो वाली चीज. ओके, सो पहली चीज जो डिवाइस कंपैटिबिलिटी है, ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये आप एंड्रॉयड मोबाइल पर दे सकते हैं, विंडोज लैपटॉप पर दे सकते हैं, विंडोज डेस्कटॉप पर दे सकते हैं. सो आप किसी भी मोबाइल पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सिस्टम इज वेरी मच कंपेटेबल टू द मोबाइल स्क्रीन ऑल्सो. ओके, बट आपका मोबाइल एंड्रॉयड होना चाहिए और उसके अंदर जो गूगल क्रोम है वो अपडेटेड होना चाहिए. तो आपका जो गूगल क्रोम है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट. तो आपको प्ले स्टोर में जाके चेक करना है कि आपका गूगल क्रोम अपडेटेड है कि नहीं. अगर नहीं है तो आपको उसको अपडेट करना है. सेकंड, जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउजर में ही वर्क करेगा, उसके अलावा किसी भी ब्राउजर में वर्क नहीं करेगा. सो आपको वो क्रॉस चेक करना है कि आप जो एग्जाम है वो गूगल क्रोम में दे रहे हैं या नहीं. ठीक. दूसरा, लैपटॉप डेस्कटॉप में जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज अ वेबकैम. सो जनरली लैपटॉप में वेबकैम अवेलेबल रहता है, बट डेस्कटॉप में अगर वेबकैम नहीं है तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन.
आपके डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके डेस्कटॉप में वेबकैम होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, वेबकैम नहीं है, तो आप कृपया आपके मोबाइल से ही एग्जामिनेशन दीजिए, बट आपका मोबाइल शुड बी एंड्रॉयड ओनली। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमारा डिवाइस कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड था। सेकंड पॉइंट है हमारा लाइट कट ऑफ, या फिर अगर बीच में ही हमारा एग्जामिनेशन बंद हो जाता है। सो सिस्टम जो है इस तरह से डिजाइन है कि आपका हर एक क्लिक ऑटोमेटिकली सेव होता है। अगर सपोज आपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, आपने 3 क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करे हैं एंड बाय एनी चांस आपका एग्जामिनेशन बंद हो जाता है, तो ये जो आपके 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं, जो आपने इनके आंसर सेव करे हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएँगे। तो जब भी आप री-लॉगिन करेंगे, आपको ये 3 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिलेंगे। तो आपका एग्ज़ामिनेशन का लॉस कभी नहीं होगा। इसमें पर क्लिक सेविंग का ऑप्शन रहता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी सेकंड आप कहीं भी क्लिक करेंगे, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सेव हो रहा है। पूरा आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा आपका वेबकैम का फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपका सिस्टम का आपका लॉस कहीं नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर आपका एग्ज़ामिनेशन बीच में बंद होता है, किसी भी कारण से लाइक पावर ऑफ या कुछ भी आपके डिवाइस में इश्यू है, तो आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है, आपका ब्राउज़र पूरा बंद करना है, देन 5 मिनट के बाद आपको जो एग्ज़ाम यूआरएल है, आपको उस एग्ज़ाम यूआरएल को कॉपी करना है, आपका गूगल क्रोम ओपन करना है, देन पेस्ट करके आपको लॉगिन अगेन करना है। आपका एग्ज़ामिनेशन वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। विदित सर गुड मॉर्निंग। ये एक और क्वेश्चन है कि आईफोन में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि कई बच्चे आईफोन और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पूछ रहे हैं। आईफोन और मैक ओएस में सिस्टम कंपैटिबल नहीं है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप एंड्रॉयड डिवाइस अरेंज कीजिए या फिर कोई लैपटॉप अरेंज कीजिए। मैक ओएस और आईफोन के अंदर एग्जामिनेशन वर्क नहीं करेगा। And sir, also related to the camera full time on का and stuffs like that, कि पूरे टाइम ऑन रखना रहेगा क्या? Will it cause any issue if the camera is not working on some phone or something? नहीं मैम, वेबकैम का जो परमिशन है, जब वो कैंडिडेट्स हमारे एग्जाम यूआरएल को हिट करेंगे, so browser एक permission मांगेगा from the candidates that whether you have to allow or block the camera access. so सभी candidates को कैमरा एक्सेस अलाउ करना है, कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी। सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन है कि आपको सिर्फ आपका एग्जामिनेशन विंडो दिखेगा, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको विजिबल नहीं है, एंड बैंडविड्थ का इतना हाई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका कैमरा प्रॉब्लम करेगा। ओके सर, आप हिंदी में एक बार और पूरा वो प्रोसेस एग्जाम का समझा दीजिए। ठीक है, मैं इसको एंड करता हूँ, दोबारा से एक बार लिंक ओपन करता हूँ। ओके मैम। ओके मैम, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, सो ये मैंने आपके लिए एक बार अगेन इनकॉग्निटो मोड में इस मॉक लिंक को हिट किया है। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इस लिंक को हिट करा है, यहाँ पर ब्राउज़र ने एक पॉपअप जनरेट किया है। ओके, सो जनरली पॉपअप में क्या है, वो मुझसे 2 चीज़ की परमिशन माँग रहा है। पहला, यूज़ योर माइक्रोफ़ोन, दूसरा यूज़ योर कैमरा। तो जब आप एग्ज़ाम का यूआरएल हिट करेंगे या फिर मॉक का यूआरएल हिट करेंगे, आपको आपके ब्राउज़र को सारे परमिशंस अलाउ करना है। लाइक दिस, ठीक है। अगेन ब्राउज़र ने आपसे एक और परमिशन माँगा है, व्हिच इज़ द ब्राउज़र हैव टू नो योर लोकेशन। ओके, सो आपको अगेन ब्राउज़र को आपकी लोकेशन का एक्सेस अलाउ करना है, लाइक दिस। ओके, सो जब भी आप एग्ज़ाम का यूआरएल हिट करेंगे, आपको हमेशा जितने भी पॉपअप्स आएँगे फ्रॉम द ब्राउज़र एंड लाइक अलाउ और ब्लॉक, आपको सभी परमिशंस अलाउ करना है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को सारी परमिशंस दी है, मेरा ब्राउज़र कंपैटिबल है, मेरा ब्राउज़र का वर्ज़न करेक्ट है, मेरे ब्राउज़र का मेरे कंप्यूटर में माइक्रोफ़ोन है, मेरे कंप्यूटर में वेबकैम है, मैंने एग्ज़ाम साइट को वेबकैम का परमिशन दिया हुआ है, मैंने एग्ज़ाम साइट को माइक्रोफ़ोन का परमिशन दिया हुआ है, एग्ज़ाम साइट हैज़ माय लोकेशन परमिशन, एंड जो ब्राउज़र है, इट इज़ सपोर्टिंग वीडियो ऑडियो कम्युनिकेशन।
सो जब आपके सारे यहाँ पे स्टेटस ग्रीन हो जाएंगे, यस, यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। इन केस अगर यहाँ पे आपका कोई इश्यू आता है, लाइक आपका ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ़ोन का गूगल क्रोम है, वो अपडेटेड नहीं है। आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट? सेकंड, ये सिर्फ़ वर्क करेगा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, तो आपको आपका जो डिवाइस है, आपको चेक करना है कि या वो एंड्रॉयड है कि नहीं, या फिर आपके विंडोज़ के लैपटॉप या डेस्कटॉप में। किसी भी केस में अगर यहाँ पे लाइक परमिशन एक्सेस में आपको दिख रहा है नो, लाइक यहाँ अगर यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम साइट हैज़ वेब परमिशन और यहाँ अगर यहाँ पे लिखा हो नो, तो आपको ब्राउज़र के साइट सेटिंग्स में जाके उसको अलाउ करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएँगे, सेटिंग्स में जाएँगे। जब आप सेटिंग्स में जाएँगे, अगर आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेसी का एक ऑप्शन आता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वहाँ पर आपको दिखेगा साइट सेटिंग्स। साइट सेटिंग्स में आपको दिखेगा परमिशंस, यहाँ पे लोकेशन है, कैमरा है, माइक्रोफोन है। तो अगर आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉगल ऑलरेडी ऑन है, ठीक है? तो अगर किसी भी केस में अगर आपका ब्राउज़र परमिशन यहाँ पे फेल दिखा रहा है, तो आपको साइट सेटिंग्स में जाकर उसको अलाउ करना है। उस अगर इन केस आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक आप नहीं कर पा रहे हैं परमिशन अलाउ, आपको साइट सेटिंग्स नहीं मिल रही है, हमारे साइट से 4 डेडिकेटेड सपोर्ट टीम्स के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए जाएँगे। आप उन्हें कभी भी किसी भी पॉइंट पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है? सो जब आपके सारा कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस होके आ जाएगा, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यू विल जंप, आप इस इंस्ट्रक्शंस पेज पे आएँगे, यहाँ पे अगेन आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन, ओके? एंड यू हैव टू एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड हियर, ठीक है? जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, तो आप पहुँचेंगे आपके ऑथराइज़ेशन स्टेप्स पर, जहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ और आईडी प्रूफ क्लिक करके अपलोड करना है, जो कि आपका ऑथराइज़ेशन प्रोसेस है। सो ऑथराइज़ेशन प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक काइंडली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, यू मस्ट सिट इन अ साइलेंट रूम विथ नो बैकग्राउंड साउंड। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप काफ़ी सिंसियर हैं, तो आपको एक साइलेंट रूम में, अकेले रूम में विदाउट अ बैकग्राउंड साउंड बैठना है, ओके? देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइट इन योर ऑन योर फेस, आपके फेस पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, कमरे में रोशनी होनी चाहिए, ताकि आपका वेबकैम आपका फेस डिटेक्ट कर पाए। देन ये ऑल सारे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारा इसमें ऑथराइजेशन में स्टेप 1 है क्लिक योर फोटो एंड अपलोड। सो हम कंटिन्यू टू स्टेप 1 बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर आएँगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैमरा आ रहा है, आपको आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे स्नैप करना है और यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने अपलोड पे क्लिक किया है, ब्राउज़र सेज योर फोटो हैज़ बीन अपलोडेड, आपको ओके करना है। फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको आपका आईडी प्रूफ या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड या स्कूल कार्ड आपको क्लिक करना है लाइक दिस। यहाँ पर आपका जब भी आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखेगा। आपको लग रहा है कि प्रीव्यू सही नहीं है, आपको दोबारा क्लिक करना है। यू कैन क्लिक ऑन द क्लिक बटन अगेन, आपको क्लिक बटन को दोबारा प्रेस कर सकते हैं। सो ये सेकंड टाइम आपका कैप्चर हो गया। जब आपको लगे कि आपका फ़ोटोग्राफ प्रॉपर कैप्चर हो गया है, आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। जब भी आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ब्राउज़र आपको पॉपअप देगा, योर आईडी कार्ड अपलोडेड। आपको ओके पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना है। सर आईडी कार्ड कोई सा भी हो सकता है, राइट? स्कूल आईडी कार्ड, हाँ, आधार, आईडी कार्ड सीरियल। आप जो अलाउ करें, आई मीन मैनेजमेंट जो अलाउ करें। ओके, ओके सर। सो मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन क्लिक करूँ? यस सर। ओके। सो जब आपका आईडी कार्ड और आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा, आप इस इंस्ट्रक्शन पेज पर जंप करोगे। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं, जी ओके? सर। वो दीज़ इंस्ट्रक्शंस आर फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। सो ये आपके जो मॉक में इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डिफ़र हैं, जो एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अलग रहेंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा।
क्योंकि आपका लॉगिन टाइम 9:15 है एंड जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है वो 9:30 है। तो आपके 15 मिनट के इंटरवल में आपको इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ना है। जब आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, आपको यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स दिख रहा है। इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन के बटन पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो बटन है आई एम रेडी टू बिगिन, ये एक्टिवेट होगा सिर्फ और सिर्फ 9:30 के बाद, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का स्टार्ट टाइम है 9:30 और आपका लॉगिन टाइम है 9:15। सो 9:15 से 9:30 के बीच में आपको आपका ऑथराइजेशन पूरा करना है, आपको आपका आईडी कार्ड फोटो अपलोड करना है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो काफ़ी सफिशिएंट होता है। जब आपको 9:30 टाइम हो जाएगा तो फिर आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल आएगा, जो भी आपका नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मेल आईडी और आपका टेस्ट टाइम। जब आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे और जब आपका एग्जामिनेशन टाइम हो जाएगा लाइक 9:30, आपको सिंपल आई एम रेडी टू बिगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका कैंडिडेट का एग्जामिनेशन पैनल है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन विजिबल है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 20। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन है, साथ में इमेज है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस देख के आपको देखना, आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको सही लगता है, A, B, C, D। जो भी आंसर आपको लगता है सही है, आपको उसको क्लिक करना है। देन यू हैव, आप सबको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कलर चेंज हो चुका है फ्रॉम येलो टू ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबमिट कर दिया है। ठीक है, नाउ अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करेंगे या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे नेक्स्ट बटन क्लिक करके। जैसे आपने नेक्स्ट बटन क्लिक करा, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का कलर चेंज नहीं हुआ है, इट इज ओनली येलो। इसका मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, सो इसका फायदा क्या होता है कि सब जब आप एग्जाम के एंड टाइम में होते हैं तो आपको पूरा विजिबिलिटी रहता है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, सेकंड, सपोज अगर एक और एग्जांपल है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है, आपने ऑप्शन नंबर ए सबमिट हो गया। जब आपने ऑप्शन नंबर ए क्लिक हुआ, ये ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, बट अगर आपको लगता है कि इसको मुझे एक और बार देखना है, या फिर मुझे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर सी हो, तो आपको इसे बाद में आके करेक्ट करना है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मार्क फॉर रिव्यू का यूज कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू जो ऑप्शन है सिर्फ आपके लिए है, एग्जाम स्कोर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू दिया है, इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया ब्लू, क्वेश्चन टर्न हो गया ब्लू कलर में, तो आपका आंसर तो इसमें ऑलरेडी सेव्ड है, बट ये आपने मार्क फॉर रिव्यू इसलिए करा है ताकि अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई आंसर चेंज करना है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन पे नेविगेट कर सकते हैं, तुरंत इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। करेक्ट। अगेन यहाँ पे 4 बटन आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप कर जाएंगे। लास्ट पर आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस मॉक का लास्ट क्वेश्चन, उस पर जंप कर जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, आप प्रीवियस बटन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट बटन यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 10 पर जाना है, आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 पे क्लिक कीजिए, उसका आंसर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। सर एक उबंटू के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि उबंटू में भी चल जाएगा क्या, उबंटू प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स प्लेटफॉर्म? नहीं सर, ओनली विंडोज प्लेटफॉर्म, ओनली विंडोज ओएस एंड ओनली एंड्रॉइड ओएस। थैंक यू। देन आपका जो क्वेश्चन पेपर है, लाइक जो कल आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। आई मीन वो 2 सेक्शन के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मैं मेरा कर्सर यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेक्शंस का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पे सेक्शन वाइज पेपर और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मॉक के अंदर सेक्शन नहीं है, बट आपके एक्चुअल एग्जाम में सेक्शंस होंगे, तो आप वहाँ से सेक्शंस को स्विच कर सकते हैं। ठीक, किसी भी पॉइंट को आपको समरी देखना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनआंसर्ड हैं, कितने मार्क फॉर रिव्यू है, तो वो आपको समरी में यहाँ पर विजिबल रहेगा। जब आपका एग्जामिनेशन एंड हो जाएगा, लाइक जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको सिंपल एंड एग्जाम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये एंड एग्जाम का बटन जब ही एक्टिवेट होगा जब आपका एक मिनिमम टाइम पास हो जाएगा। सपोज आपका एग्जामिनेशन जो है 60 मिनट्स का है, ओके, एंड आपका जो एडमिन से बैकएंड से डिसाइडेड टाइम, लाइक अगर आपको आधा घंटा मिनिमम एग्जाम देना ही है या आपको 40 मिनट्स एग्जाम देना ही है, तो वो आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कर देगा। सो अगर आपको मिनिमम 40 मिनट्स एग्जामिनेशन में बैठना है या मतलब 40 मिनट आपको एग्जामिनेशन विंडो ओपन रखनी है, आपको उतनी देर ओपन रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही एंड एग्जाम का बटन एक्टिवेट होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा एंड एग्जाम का बटन काम नहीं कर रहा या फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। वो बटन जब भी काम करेगा जब आपका एक मिनिमम टाइम अमाउंट पास हो जाएगा। लाइक अगर आपका एडमिन से डिसाइडेड है कि आपको आधा घंटा किसी भी कीमत पे एग्जाम विंडो ओपन रखना है, तो एग्जामिनेशन का जो एंड बटन है वो हाफ एन आवर के बाद ही एक्टिवेट होगा। किसी भी केस में अगर मान लीजिए गलती से आप एंड एग्जाम पे क्लिक करते हैं, तो आपसे 2 बार पूछा जाएगा दैट आर यू श्योर यू वांट टू एंड द एग्जाम, देन अगेन प्लीज रिकन्फर्म टू एंड द एग्जाम। सो अगर आप गलती से भी क्लिक करते हैं तो सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि आपको वो 2 बार कंफर्मेशन मांगेगा, करेक्ट। सो एंड एग्जाम पे आप लोग क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू एंड द एग्जाम, एंड एग्जाम, प्लीज रिकन्फर्म टू एंड द एग्जाम, एंड एग्जाम। जब आप एंड एग्जाम पे क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा विंडो हो जाएगा, डियर डेमो यूजर, यहाँ पर आपको आपका नाम दिखेगा, थैंक्स फॉर टेकिंग द टेस्ट, क्लिक बिलो बटन टू क्लोज द विंडो। आपको यहाँ पे क्लोज करके आपका एग्जामिनेशन विंडो बंद कर देना है, ठीक है। अब इन एनी केस मान लीजिए आपने एंड एग्जाम पे बटन पे क्लिक किया है, बट आपका ये मैसेज नहीं आया या फिर आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली बंद हो गया या फिर 60 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम बंद हो गया, तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। आपको पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज 75 क्वेश्चंस है आई थिंक, तो अगर आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने एंड एग्जाम का बटन क्लिक नहीं किया है, तो वो 70 क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो आपको पैनिक करने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा एंड एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा आंसर सेव हुए कि नहीं, ठीक है। तो आपके हर क्लिक पे आपके आंसर सेव होंगे, सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन है। तो एक क्वेरी आई है इन हाँ। जस्ट द केस दैट यू जस्ट मेंशन कि एंड एग्जाम हो गया या समथिंग, जो क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू मार्क्ड हैं, विल दे गो अंडर असेसमेंट या फिर वो नहीं जाएगा? नहीं, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है। एग्जामिनेशन स्कोर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका उसका क्या है, मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर आपको लगता है कि इसमें आपको डाउट है, आपको इसका आंसर दोबारा अटेम्प्ट करना है, आपको इसका आंसर चेंज करना है, तो आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली एज सून एज पॉसिबल जंप कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलर हम लोग चेंज करते हैं। बाकी मार्क फॉर रिव्यू करने से आपके एग्जाम स्कोर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जामिनेशन बीच में बंद हो गया है, आपको रीलॉगिन करना है, रीलॉगिन नहीं हो रहा है, आपको सपोर्ट टीम्स के नंबर शेयर किए जाएंगे, आपको कॉल करना है। अगर नंबर बिजी आए आप वेट कीजिए, दूसरा नंबर ट्राई कीजिए। नंबर बिजी आएगा तो आपको अगेन ट्राई करना है, कॉल वो लोग ज़रूर उठाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका एग्जामिनेशन बीच टाइम में कहीं बंद होता है, तो आपका टाइम उसी मोमेंट पर पॉज हो जाएगा। सपोज आपने 10 मिनट का एग्जामिनेशन दे दिया है और किसी भी कॉज से आपका एग्जामिनेशन विंडो बंद हो जाता है, तो आपका टाइम लॉस नहीं होगा। आप जब वापस लॉगिन करेंगे तो आपको रिमेनिंग 50 मिनट्स पूरे मिलेंगे। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम बीच में बंद हो गया, मेरा टाइम लॉस हो रहा है। आपका टाइम लॉस नहीं होगा। जितने देर आप एग्जामिनेशन विंडो में रहेंगे, सिर्फ उतना ही टाइम हमारे पास काउंट होगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। So I had one question to ask. Usually मैंने देखा है कि when we scan the ID cards,
हाँ। बीट आधार, बीट डीएल, बीट हाँ। स्कूल आईडी कार्ड, जब अपन फोन से स्कैन करते सब वो इन्वर्ट हो जाता है और वो हाँ। क्लियर स्कैनिंग नहीं लेता है। हाँ। So few of the students have asked this question also. Scanning का issue आएगा सर, तो उस टाइम पे फोन से जो लोग स्पेशली यूज कर रहे हैं उनको इश्यू आ सकता है, तो how can they manage that thing initially, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज है। मैम मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो मॉक लिंक हमने आप लोगों को शेयर करा है आप उसको कैंडिडेट्स के साथ शेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं मॉक लिंक को गो थ्रू कीजिए, पूरा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका फ़ोन आपके हिसाब से चलेगा, आपको कैसे यूज़ करना है वो आप बेहतर जानते हैं, तो उसको कौन सी प्लेस पे रख के कैसे आपको आईडी का फ़ोटो लेना है वो आप बेहतर जानते हैं। तो आपको मॉक लिंक का प्रैक्टिस करना है ताकि आप उस प्रोसेस से ईज़िली गो थ्रू कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि फ़ोटोग्राफ कैप्चर नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ है, तो यू कैन री-क्लिक ऑन द बटन, वो आप जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार क्लिक कर सकते हैं। Okay.